Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And in this particular video, we are going to talk about top 6 libraries which you can install with Django if you are creating some Django application and want to debug your code and want to enhance your functionality and want to enhance your overall Django experience. So these all extension are recommended from my side, and because uh, I have taken a lot of steps to get all these 6 extension, because for the couple of last project I have used this all these extension at a very core level, and I use all these extension to develop all my projects in my company or in my personal project or in some freelancing work. And these are like very life saving libraries. If you know them, if you can utilize the functionality of these libraries, your life will be very easy. So let's start by introducing, because Django is a very big framework and it has a lot of capabilities and it has a lot of things which you want to explore and you want to enhance your functionality. But with the help of these libraries, you can do a lot of things much better, in a much better way, or in a much enhanced way, or you can achieve those goals, those debugging skills of your Django application, those modeling steps in a very easier way. And before going starting to the video, I have a very important information. So if you want to grab a job of 5 minimum CTC or 5 LPA, न्यूटन स्कूल न्यूटन स्कूल के जो कोर्स है वो स्टार्ट हो गए हैं फॉर द जनवरी सेशन. एंड इफ यू डोंट नो व्हाट्स न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल इज एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मिनिमम 5 लाख CTC का जॉब प्रोवाइड किया जाता है. एंड ये आपको पूरी फुल स्टैक कोर्स की ट्रेनिंग देते हैं फॉर कंटिन्यू ऑफ 6 मंथ. एंड 6 मंथ में आपको बैक एंड एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं. एंड आपकी मिनिमम 5 लाख की CTC मिलती है. एंड आपको अमाउंट तभी पे करना होता है जब आपकी जॉब मिनिमम 5 लाख से ऊपर की लग जाए. एंड जो न्यूटन स्कूल के इन रिक्रूटर्स हैं वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी से टाई अप्स हैं. लाइक यू कैन सी Vimeo, Lenskart, Mishu, Motorola, Zomato, Xiaomi. These all are product-based companies, top product-based companies of India. And if you want to enhance your career, if you want to get minimum CTC of 5 lakh, definitely you can enroll in the course. The link will be in the description section. And they also provide like live classes, industry projects, mock interviews, and personal mentoring. So if you want to gear up your skill, if you want to gear up your career, definitely you can enroll in this course. And let's start the video. And one more very important thing, if you haven't subscribed the channel, please do it. So let's start with the first library, which is my personal favorite, and I use this particular library in every single project which I create. That is Django debug toolbar. ओके, सो Django debug toolbar एक ऐसा एक्सटेंशन है या फिर एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपकी लाइफ को बचा सकती है. ये लाइब्रेरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लाइक आपकी रॉ जो भी आपको RM क्वेरीज लिखते हो उनको रॉ SQL में, ताकि आप उन क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कर पाओ. एंड ओवरऑल जब अपने एप्लीकेशन को आप डिबग कर रहे होगे, आप एप्लीकेशन को अच्छे से समझ रहे होगे कि कहाँ पे वो लूप होल है, कहाँ पे वो मेमोरी लीक्स हो रही हैं, एंड कहाँ पे हमारी जो क्वेरी है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, कितना टाइम ले रही है, कितना एक पेज लोड होने में टाइम ले रहा है, कितना बैकएंड से फ्रंट एंड में डेटा आने में ले रहा है, वो ये सारी चीज़ें दे देता है Django debug toolbar. एंड ये बहुत पॉपुलर है एंड बहुत पावरफुल भी है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करता है. इंटीग्रेशन आप इसका बहुत आसान है. इंस्टॉलेशन पे जाना है एंड इसके बाद सेटिंग्स में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है एंड आपका Django debug toolbar तैयार है. एंड ये बहुत पावरफुल है. दिस इज टोटली रिकमेंडेड इफ यू वांट टू लाइक debug your Django application, if you want to see द हाउ मच योर क्वेरी टेक्स टाइम टू रन, है ना, तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द सेकेंड लाइब्रेरी, दैट इज Django कोर्स हेडर. आपको पता होगा कि जब भी आप लाइक कोई भी फ्रंट एंड से बैक एंड में कोई वो देते हो, है ना, कोई जब सेम ओरिजिन पे कोई चीज़ होती है तब वहाँ पे आपको एक एरर आती है कि आपको कोर्स एरर आती है, जो क्रोम या फिर कोई मॉडर्न ब्राउज़र का सिनेरियो होता है कि आप सेम एंड पॉइंट से एक ही API को नहीं कॉल कर सकते हो. तो वहाँ पे आपको ये चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है. आई होप लाइक बहुत सारे लोग इस लाइब्रेरी से फेमिलियर होंगे. अगर आप बैक एंड में रेस्ट APIs में आप चीज़ें बिल्टअप करते होगे एंड आप फ्रंट एंड में भी वही चीज़ें करते होगे, तो आपको ये सारी चीज़ें होगी. तो ये बहुत आसान है एंड ये काफ़ी बहुत लाइक पॉपुलर लाइब्रेरी है एंड इट वाज डेवलप्ड बाय
दिस मैन एडम चेन्स, इफ आई एम स्पेलिंग राइट, एंड इसको भी ट्वीक करना बहुत आसान है। नाउ कमिंग टू द थर्ड लाइब्रेरी विच इज ऑल्सो माई पर्सनल फेवरेट, एंड यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी नहीं, एक लाइफ सेवर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यार ये जो लाइब्रेरी है ना, ये बहुत पावरफुल है। एंड दिस इज इट, जैसे कि हमें पता होगा कि जब भी हमें कोई क्वेरी वगैरह एग्जीक्यूट करनी होती है तो हम जैंगो शेल में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, एंड हमें पता नहीं होता कौन से ऐप में हमारा कौन सी क्या चीज़ पड़ी हुई है, एंड हमें सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसमें आपको एक शेल प्लस का ऑप्शन मिल जाता है। आप लिखते हो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल, वैसे लिखते हो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल प्लस, ठीक है। एंड उसके बाद में ये आपका स्टार्ट हो जाता है, एंड वहां पे आप इस चीज को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिबगिंग की बहुत सारी चीजें मिल जाती है, आप जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो, मॉडल को अपने एक्सटेंशन कर सकते हो, एंड एडमिन के एक्सटेंशन कर सकते हो, अपने कमांड्स को एक्सटेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एंड इसमें खुद का एक शेल प्लस होता है जो कि ऑटोमेटिकली जो भी आपके मॉडल्स होती है, जो भी आपकी नेसेसरी फाइल्स होती है, उनको पुल अप करके लेकर के आता है। जैसे कि आप नॉर्मल जांगो शेल को इंपोर्ट करते हो, उसके बाद शेल में जाते हो, फिर चीज़ें इंपोर्ट करते हो, तो ये शेल प्लस ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें कर देता है। नाउ कमिंग टू द अगेन लाइफ सेविंग, दैट इज सेंट्री। सेंट्री क्या होता है, जैसे कि है, ये एक तरीके की लाइब्रेरी भी है या फिर एक कह सकते हो एक प्रोडक्ट भी है। तो ये क्या होता है, जब भी जैसे आपने आपका पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय बन चुका है एंड आपने उसको कहीं जगह पे डिप्लॉय करके रखा हुआ है, डिजिटल ओशन AWS पे। अब क्या होता है, लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, कहीं कहीं पे एरर आता है, कहीं कहीं पे दिक्कत आती है, कहीं कहीं पे कोड फट जाता है, तब आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि यार देखो क्या होता है, जब आप यहाँ पे लाइक सपोज अगर मैं सर्वर रन कर रहा हूँ तो मुझे कंसोल में पता चल जाता है, मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में पता चल जाता है कि ये एरर आई थी, ये लाइन नंबर था, यहाँ पे कोड फटा, ये सब हुआ, तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन मुझे नहीं आता, अब मैं रात में सो रहा हूँ और मुझे पता नहीं चला कि कौन से क्लाइंट ने क्या चीज एग्जीक्यूट करी, कौन से पेज पे गया, कौन से उसने क्वेरी फायर की, एंड वहां पे उसको एरर मिल गया, ठीक है। उस टाइम पे ये सेंट्री बहुत काम आता है। आपको क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली ये मेल कर देता है कि यहाँ पे ये एरर लाइन नंबर है, ये फंक्शन आपका फटा था, यहाँ पे ये आपकी क्वेरी थी, ये सारी चीजें कर रहा है। मतलब ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है सिस्टम को, आपके जैंगो के एप्लीकेशन को, और उस हिसाब से आपको मेल कर देता है कि ये आया था। ये थोड़ा इनका प्राइसिंग वगैरह है आपको, लेकिन फ्री मिल जाते हैं अगर डेवलपर है, कुछ लाइक सेट ऑफ चीजें मिलती हैं फ्री। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है सेंट्री, एंड दिस इज़ वेरी रिकमेंडेड इफ़ यू आर डिप्लॉइंग योर कोड। एंड अगर आपको लगता है कि आपके कोड में कुछ बग है, या फिर क्योंकि भाई कोई भी कोड होता है वो फुल्ली टेस्टेड तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार होता है आप टेस्ट करते हो लोकल पे एंड प्रोडक्शन में जाकर के कुछ और चीज़ें हो जाती है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लाइक नेक्स्ट लाइब्रेरी, दैट इज जैंगो ऑल आउट। अब देखो क्या होता है, कहीं भी आप जाओगे, आजकल गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, गिटहब लॉगिन, माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन, लिंक्डइन लॉगिन, पता नहीं कौन कौन से लॉगिन आ चुके हैं। तो ये सारे लॉगिन को आपको एक करके दे देता है। मतलब आपको इसमें जो भी लॉगिन ऐड करना है आप बहुत इजीली लगा सकते हो। देखो इतने सारे चीज़ों को ये प्रोवाइड करता है। अमेजोन लॉगिन हो गया, और एंजल, एप्पल लॉगिन, आसना लॉगिन, एजर लॉगिन, बाइडू लॉगिन, बेस कैंप लॉगिन, बिटबकेट, सन, कोलेजन, कॉइन बेस, इतने सारे, गूगल लॉगिन, लिंक्डइन हो गया, की क्लॉक लॉगिन, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के लॉगिन मिल जाते हैं। मतलब जो भी आप लॉगिन सोच सकते हो ना, वो सारे के सारे लॉगिन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है अगर आपको यूज करना हो, कि आपको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई एक ऑथेंटिकेशन यूज करना हो, चाहे वो लिंक्डइन हो गया या कोई भी तीन चार, क्योंकि आजकल आप हर जगह जाओगे, फेसबुक, गूगल एंड कई सारे होते हैं। अगर आपको कोई टेक वाला बना रहे हो तो फिर गिटहब लॉगिन भी दे सकते हो, लिंक्डइन लॉगिन भी दे सकते हो, तो ये भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं लास्ट वाली पे, दैट इज जैंगो सिंपल हिस्ट्री। ये भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी क्या करती है कि जैसे मान लो आपने कोई डेटाबेस में कोई चेंज किया है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्या वो चेंज किया था। लाइक सपोज दैट अगर मैंने कोई एक ब्लॉग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बना रहा है एंड ब्लॉग एप्लीकेशन को मैंने डिलीट किया, तो मुझे ऑटोमेटिकली लॉग हो जानी चाहिए वो एंट्री कि किस बंदे ने डिलीट किया था, है ना, कितने टाइम पे डिलीट किया था, ताकि वो उसको अगर दोबारा लाइक अंडू करना चाहे या अनडिलीट करना चाहे तो वो सारी चीजें हो पाए। तो ये आपका क्या करता है, जैंगो सिंपल हिस्ट्री करके देता है। ये आपको एक पूरी पूरी हिस्ट्री बना के देता है, एक ब्लूप्रिंट बना के देता है कि ये चीजें हुई थी, आपने यहाँ पे गए थे, आप यहाँ पे ये चीज डिलीट करी थी, ये
पोल क्रिएट किया था, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। देखो ये क्या हुआ, इसने आपको देख पा रहे हो कि पोल डॉट ऑब्जेक्ट, फिर चॉइसेस, इसने मॉडल इंपोर्ट किए, फिर डेटा पोल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट कर दिया, क्वेश्चन एंड पब्लिश डेटा डाल दिया। उसके बाद पोल डॉट हिस्ट्री डॉट ऑल, तो आपको सारी हिस्ट्री पता चल गई कि पोल जो ऑब्जेक्ट वो इतने टाइम पे क्रिएट हुआ था। एंड जो भी चीज़ें आप करोगे, अगर आप उसमें कोई अपडेट करते हो या फिर कोई उसको डिलीट करते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर मिल जाती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। लाइक अगर आपको कोई ऐसी लाइक एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे आपको हर एक कोई भी अगर डेटाबेस में कोई चेंजेस होते हैं या फिर कोई भी एंट्री होती है तो वो आपकी लॉग हो जाए, तो ये भी बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी है एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये वो थी वो टॉप 6 लाइब्रेरी जो मैं यूज़ करता हूँ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में। एंड आपकी कौन सी पर्सनल फेवरेट है वो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, होंगी बहुत अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। एंड अगर आपको मिनिमम 5 लाख CTC की जॉब चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन द कोर्स। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।